Dear students, welcome back to my channel. So, as history exam is ahead only 2 days back, I am trying to continue some portion from civics, that is the union legislature or the union parliament. Okay, so union legislature and union parliament. What are the three distinct wings of the government? The three distinct wings of the government are legislative, means the law making wing of the government, then executive, the governing wing of the government, then judiciary, the wing that dispenses justice. एक्चुअली हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार पर जुडिशियरी का काम होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो काम करते वो सही सलामत किए या नहीं, वो इसका देखभाल कौन विंग करता है? जुडिशियरी विंग. ओके, देन व्हाट डू मीन बाय फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट? द फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट in which all the administrative powers are divided between the central and the state governments by the constitution, and both are supreme within their respective sphere. Again I repeat, the system of government in which all the administrative powers are divided between the central and the state governments by the constitution, and both are supreme within their respective spheres. ओके, सो हम अभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेचर. एक्चुअली द यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेचर इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. वो नियम बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब नियम पालन करता है, और जुडिशियरी ये देखभाल करता है सही सलामत ठीक ढंग से ये जो नियम बना हुआ नियम ये पालित हुआ या नहीं. ओके, देन द यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री constituents or three components. What are the three components of the union legislature or union parliament? The three components of the union legislature or union parliament are the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the president. Lok Sabha means lower house, Rajya Sabha the upper house. Lok Sabha को भी कहा जाता the house of the people, राज्य सभा को कहा जाता the house of the states, and the president. Okay, then Lok Sabha. The total members of the Lok Sabha are 550. Okay, out of 550, 530 represents the states and 20 from the union territories. ये जो 550 होते हैं, ये 550 में से लेकिन मैक्सिमम 550, अभी 543, जैसे 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. ये पहले 552 था, 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट किया जाता था, अभी वो सिस्टम नहीं है. द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज व्हिच मीन्स the principle of adult franchise or the principle of adult universal adult franchise means any citizen of India above 18 years age have the right to vote. जिसका 18 साल से ज़्यादा हो ये वोट दे सकता है, लेकिन ये इंडियन होना चाहिए. पहले वो 21 ईयर्स था. ओके, देन व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ लोक सभा? Should be a citizen of India, should be at least 25 years old, should not be a proclaimed offender. इसका ऊपर कोई केस वगैरह नहीं रहना चाहिए. should have her or his name in the electoral college, electoral rolls in any part of the country. वोटर लिस्ट में इसका नाम होना चाहिए. should not
होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट नौकरी ये भी नहीं करना चाहिए। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years. It can dissolved by the president before the expire of its term if a vote of no confidence is passed against Lok Sabha. Okay, its terms can be extended by the parliament for a period not exceeding 1 year during the proclamation of emergency. मैक्सिमम 1 साल तक, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 महीना 1 साल तक इसका टर्म भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन राज्यसभा केस में वो नहीं होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, वो कभी डिजल्व नहीं होता। ओके, ए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मैंने कैन सर्व फॉर 6 years, लेकिन राज्यसभा कभी डिजल्व नहीं होता, वो एक परमानेंट हाउस। देन पावर्स एंड फंक्शंस कॉमन टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये दोनों हाउस का कॉमन पावर क्या होता है? बोथ द हाउसेस इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हाउस वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए दोनों का शेयर समान रहता है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, इफ द प्रेसिडेंट गोज अगेंस्ट द माने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, then impeachment can be done by any house, okay, of the parliament. Impeachment proceedings against the president or judges of Supreme Court or High Courts can be initiated in either house. इनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी हाउस से ये इम्पीचमेंट इनिशिएट हो सकता। ये नॉन मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ दी 2 हाउसेस, बट मनी बिल केस में लोकसभा का सुप्रीम पावर होता है। इन केस ऑफ मनी बिल इट कैन इनिशिएट ओनली इन लोकसभा, ओके, नॉट इन राज्यसभा। ओके, लेकिन नॉन मनी बिल दोनों हाउस में इनिशिएट हो सकता, इंट्रोड्यूस हो सकता। बोथ हाउसेस एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना दोनों का समान अधिकार होता है। दो द लोकसभा एलोन कैन वोट ए मिनिस्ट्री आउट ऑफ द ऑफिस बाई मीन्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ द लोकसभा फील्स if the ministers can continue in office, the ministers can continue in the office as long as they enjoy the confidence of the Lok Sabha. A vote of no confidence against the ministry is, if accepted, will force the council of ministers to quit. वो मिनिस्टर को क्विट कर सकता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्विट कर सकता है, माने या टोटल मिनिस्ट्री भी डिजल्व हो सकता बाय द प्रेसिडेंट। ओके, देन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का क्या एक्सक्लूसिव पावर? ओके, मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता, नॉन मनी बिल दोनों हाउस में हो सकता, लेकिन मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। द लोकसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू रिमूव ए मिनिस्टर आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर और मिनिस्ट्री out of office, or you can say a motion of no confidence against the union government can only be introduced in Lok Sabha, introduced and passed in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. एक मिनिस्टर का ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल तो दोनों हाउस का होता है, लेकिन लोकसभा का ज़्यादातर पावरफुल होता है, इसीलिए क्योंकि कोई भी टाइम में इनका आसन भी वो आसन से भी बहिष्कृत हो सकते, इनको बहिष्कार किया जा सकता। ओके, देन थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूसिव पावर में लोकसभा का, इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन 2 हाउसेस ओवर ए बिल, देन द विल ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स इन द जॉइंट सेशन ड्यू टू इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि लोकसभा का स्ट्रेंथ राज्यसभा का डबल से ज़्यादा रहता है, इसीलिए दोनों हाउस के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, द विल्स ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स बिकॉज इट हैज मोर देन डबल द स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ द राज्यसभा। ये एक जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। तो एक क्वेश्चन भी आता है, हो प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर प्रिजाइड करता, लेकिन वो ये जो माने इसको बुलाता कौन है, माने प्रेसिडेंट का जॉइंट सेशन में प्रिजाइडिंग करता कौन है, स्पीकर। ओके, देन एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा। द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। 3 प्रकार का लिस्ट होता है, माने
एक कॉन्करेंट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर कोई एक चीज, कोई सब्जेक्ट रहता है, द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट that has become a subject of national importance। राज्यसभा अगर महसूस किया स्टेट लिस्ट का अंदर कोई सब्जेक्ट है, इसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो अब इसीलिए माने पार्लियामेंट को इसका ऊपर लॉ बनाना चाहिए। ये भी हकीकत, अगर लॉ पार्लियामेंट बनाएगा इसका माने दैट विल, ये बलवत्त, तो ये क्या होगा, दैट विल बी फाइनल, नॉट द लॉ ऑफ द स्टेट, because parliament has supreme hands over the states। So the Rajya Sabha has exclusive power to declare a subject of state list that has become a subject of national importance and empowers the parliament to make law on it। तो राज्यसभा पार्लियामेंट को कहेगा, लोकसभा या राज्यसभा को, ये स्टेट लिस्ट में होने के नाते इसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, तब इसलिए पार्लियामेंट को इसका ऊपर लॉ बनाना चाहिए। तब ये सिर्फ राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर, नॉट लोकसभा का पावर। ओके, इट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर कहीं पे को न्यू ऑल इंडिया सर्विस कहाँ पे होगा, तब दैट शुड बी माने क्रिएटेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा में मेजोरिटी, अगर इसमें मेजोरिटी से ग्रांट हुआ, तब ये न्यू ऑल इंडिया सर्विस इंस्टॉल कर सकता है। द राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस नेवर डिजॉल्व्स। इसका तो ये सबसे बेहतर पॉइंट, लोकसभा में कोई पावरफुल होने के नाते कभी भी इनका आसन जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर, इनका आसन कभी नहीं जाने वाला है, 6 साल तक रहेंगे ही रहेंगे, इनको कोई माने आउट नहीं कर सकता। ओके, then mention 4 ways by which the parliament controls over the executive। ओके, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। ओके, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। इन ए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस। इन ए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट for all acts of omissions and commissions। The parliament controls the executive in many ways। मैं 4 वे लिखा, मैक्सिमम 3 वेज भी आता है, लेकिन मैं 4 different types of ways I mentioned। First, the question hour। In this time between 11 AM to 12 noon, the house seeks information from the government about its policies and performances। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। The house seeks information from the government about its policies and performances। ऐसे तुम हेडिंग लिख देंगे, नंबर 1 क्वेश्चन आवर, इसके बीच बारे में एक आधे लाइन लिखेंगे। देन अर्जेंट मोशंस। विद द अर्जेंट मोशन द रूटीन बिजनेस ऑफ द हाउस इज पोस्टपोन्ड। सपोज कोई एक स्पेशल इम्पोर्टेंट कोई मैटर आ गया, तब उसी में जो नॉर्मल बिजनेस हाउस, ये इट विल बिकम ए साइड, ये एक साइड हो जाएगा, तब इसका ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देन मॉनिटरी कंट्रोल। द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक पब्लिक अकाउंट कमिटी होता है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट कीप्स ए चेक टू एंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्स डिसीजन। द पार्लियामेंट का डिसीजन का हिसाब में पब्लिक मनी स्पेंट होता या नहीं, इसका देखभाल करने के लिए द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पार्लियामेंट का एक होता है। ओके, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट कीप्स ए चेक टू एंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्स डिसीजन। ये हो गया मॉनिटरी कंट्रोल। देन नंबर 4, नो कॉन्फिडेंस मोशन। द मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा। A vote of no confidence against the ministry, if accepted, will force the council of ministers to quit and the government will dissolve। ओके, तब इसीलिए लोकसभा का ऊपर एक हमेशा एक छाया रहता, कभी भी इनका पावर भी जा सकता, दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तब इसीलिए मैंने कहा 4 ways by which the parliament controls the executives
the question hour, urgent motions, monetary controls, and no confidence motion. Okay, I covered the only these portion. So you just go through this. You may be benefited if questions from this section will come. Okay, with this agreement. Thank you very much. I am also sending the copies. Okay, the notes, so that it will be you might go through over this. Okay, I including my in this portion I am sending the attaching the copy. Okay, with this agreement. Thank you very much.